Today my topic is regarding electrochemistry. Electrochemistry is all about potential. Potential is what? That is capability to do something. Okay, so before further studying what is electrochemistry and further concept, I would like to introduce some few terms that you have read earlier but still it is required to refresh them. That is oxidation and reduction and redox reaction. So first of all, what is redox reaction? Redox reaction are those reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously. Then first of all, we have to see what is oxidation reaction. Oxidation reaction are the reaction in which removal of electron takes place, and reduction reaction are the reaction in which addition of electron takes place. To understand this thing, let us take a quick example regarding it. So in this example, hydrogen plus fluorine giving hydrogen fluoride. As we can see, hydrogen fluoride is an ionic compound. So in this case, hydrogen has a positive charge and fluorine has a negative charge. We can say that it's a compound having in which the hydrogen has a positive charge and fluorine has a negative charge. So in this reaction, what is happening is hydrogen is converting to the, let me balance it, 2H positive, and since it is losing the two electrons, so we write the two electrons here, and fluorine getting converted to 2F negative. Now, in order to convert into the two fluoride ions, it has to gain some electrons. So here I can say that minus of 2 electrons, or I can say that the 2 electrons are added in that of the fluorine to give 2 fluoride ion. So I can say that the 2 electrons which is generated here get consumed here. If I introduced, so this is an redox reaction. I have break up this reaction into two parts. In one part there is oxidation take place, in another part there is a reduction takes place. Since they are both taking place simultaneously, it is called the redox reaction. This is called oxidation half reaction and this is called reduction half reaction, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक पे. What is electrochemistry? Electrochemistry is a branch of science जो डील करती है with the study of conversion of the chemical energy to the electrical energy और electrical energy to the chemical energy. यानी कि वो फील्ड जिसके जरिए आप केमिकल रिएक्शंस के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हो या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर सकते हो. इस एग्जांपल के लिए समझते हैं कि बेसिस क्या है उसका. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं. If I complete the circuit, then the electrons will, or in other words, I can say that electrons are flowing from hydrogen to fluorine. So अगर मैं इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग डिवाइस अगर लगा देती हूँ, then in that case it's possible to run that device. I know अभी circuit complete नहीं है, we will understand it, but this is mainly the basis of electrochemistry. So on the basis of the ability now I am going to introduce one more term that is called electrochemical cell. What is an electrochemical cell? Electrochemical cell is a cell in which this phenomenon of electrochemistry takes place. यानी कि या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी या केमिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि वेदर दे आर कन्वर्टिंग केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी. दैट इज गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इन गैल्वेनिक सेल हियर गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है that our chemical energy is converted to electrical energy. अब क्योंकि केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, सो वी कैन से दैट हियर जो केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी कि अपने आप हो रहा है. ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है केमिकल रिएक्शन को करने के लिए. सो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसे करवाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने पड़ रहे हैं. ओके. सो बट हियर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. सो इन दिस कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल. नाउ हम जानते हैं कि जैसे अब हम कह रहे हैं कि हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. अब हमें पता है कि जब भी हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी का नाम आता है तो वी थिंक अबाउट सर्किट्स, बैटरी, सेल. सो हमें पता है कि सेल नॉर्मल इस तरह का होता है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग डिवाइस प्रेजेंट होता है. ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है पॉजिटिव. जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है वैसे यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. बट हियर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज गिवन हियर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर
where electrons are generated, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वहां नेगेटिव साइन आएगा और जहां इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होंगे वहां पॉजिटिव साइन आएगा। यहां पर आपके पास में जिंक इलेक्ट्रोड है, एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल है, example of galvanic cell I am giving. Here we have a zinc electrode, and here zinc in this what is happening I will tell you. Here there is a zinc sulfate solution in this cell and copper sulfate solution in this cell. This is a copper electrode and this is a zinc electrode. What is happening here? Zinc की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। सो यहाँ पर जिंक से लेकर कॉपर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जिंक जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल दिया गया है, क्योंकि जिंक वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है अपने ऑक्सीडेशन के जरिए और कॉपर वहां उन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रहा है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, हाँ एक चीज और आई वांट टू टेल यू व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो आपके वायर यानी कि जो मेटेलिक पार्ट ऑफ सर्किट है उसे नॉन मेटेलिक पार्ट के साथ में कनेक्शन का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है अपने पास में कैथोड और एक होता है एनोड। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा वाला सेल है हमारे पास में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके वजह से कि कौन सा वाला सेल है। ठीक है, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जिंक प्लस बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, दैट्स कॉल्ड द एनोड, एंड ये वाला दूसरा वाला क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। यहाँ पर एनोड को नेगेटिव दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, इसको पॉजिटिव दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी दी जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है आपका NaCl, NaCl को तोड़ने के बाद में हमें पता है सोडियम और क्लोरीन निकलता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर आपके पास में क्लोरीन का तो हो नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एन इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ द क्लोरीन। सो यहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड रखा जाता है जो एक सरफेस बनता है जो क्लोरीन गैस निकलेगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, यूनिट में एब्जॉर्प्शन, आई एम नॉट सेइंग एब्जॉर्प्शन, इट्स एब्जॉर्प्शन। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होता है यहाँ पर फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डाले जा रहे हैं कैथोड के अंदर, जो एक्सेप्ट कर रहा है सोडियम और कन्वर्ट हो रहा है सोडियम आयन से सोडियम के अंदर। और यहाँ पर क्लोरीन अब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का रोल क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन जो होता है वो दे रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब देखो एक चीज देखने वाली बात है, पोलैरिटी यहाँ पर एनोड की नेगेटिव है और कैथोड की पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर अपोजिट साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि भाई आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं इसके अंदर से, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दिस इज द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज, हाँ हमने एक्सटर्नली तो सर्किट को कनेक्ट कर लिया है, लेकिन सर्किट को इंटरनली कनेक्ट करना भी जरूरी है। दैट कनेक्शन ऑफ सर्किट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज हियर। यहाँ पर तो ऐसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इंटरनली चल रहा है मामला, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इंटरनली आपके सर्किट को कनेक्ट करेगा और यहाँ पर फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का विद द हेल्प ऑफ आयंस होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आयंस के जरिए होगा। सो नाउ वी हैव डन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। नाउ आई टेल यू सम मोर डिटेल्स अबाउट द गैल्वेनिक सेल। एक हम पोटेंशियल टर्म बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, सो आई विल टेल यू नो पोटेंशियल क्या होता है। सो हमारे पास में पोटेंशियल यहाँ पर दो तरीके का होगा, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड यानी कि वो अपने उसकी टेंडेंसी की वो इतने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। जैसे कि इस वाले केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो जिंक ये हमारे पास में जिंक इलेक्ट्रोड था, ये जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसकी टेंडेंसी कितनी है ऑक्सीडाइज करने की, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड देन हमारे पास में कॉपर का है, कॉपर क्या है कि कॉपर अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, यानी कि क्या था, कॉपर नेगेटिव था, कॉपर 2 प्लस था, कॉपर 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स लिए और यहाँ पर इस पे डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी टेंडेंसी कितनी है रिड्यूस होने की, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और वी कैन से इट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास में है which can be oxidation electrode potential or reduction electrode potential. ठीक है, we have two terms. Now I am introduce a new term that is called electromotive force. Electromotive force क्या होता है, potential difference between the two electrodes, that is potential difference between the two electrodes जो होता है, that is called the electromotive force, यानी कि EMF। अच्छा देखो, EMF और वोल्टेज में डिफरेंस होता है। EMF तब मेजर किया जाता है जब करंट कोई फ्लो नहीं करता सर्किट के जरिए, और वोल्टेज जो है उसके अंदर करंट जो है वो आपका फ्लो करता है सर्किट के जरिए।
नाउ अबाउट दिस टर्म वी विल इसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब ये आता है आपके पास में ईएमएफ। ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ के अंदर आपके पास में होगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, या फिर, और ये जो ई है ये आपके पास में दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ऑब्वियस सी बात है, एनोड की टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या है? रिडक्शन है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या, इलेक्ट्रॉन्स को देना, रिडक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को लेना हो गया, तो उसका अपोजिट है। दैट्स व्हाई हमने माइनस ई एनोड लगाया, क्योंकि जब हम इसको माइनस करेंगे दोनों सेम में होने चाहिए, या तो दोनों रिडक्शन में करो या दोनों ऑक्सीडेशन में करो, तब जाके माइनस होगा। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये तो अभी हमारे पास रिडक्शन था, ई रिडक्शन पोटेंशियल था, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं ई रिडक्शन कैथोड माइनस प्लस ई ऑक्सीडेशन एनोड, यानी कि दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ प्रोसेसर। अब क्या है कि हमारे पास में होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ, दैट इज ई नॉट। वो तब होता है जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडाइज फॉर्म है जिंक की, क्या है Zn+2, एंड रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है इसकी, जिंक, ठीक है। इसी तरह से कॉपर की ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है +2, एंड इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, कॉपर सल्फेट की Cu के फॉर्म में है। जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों का अमाउंट जो है यूनिटी होगा, देन इन दैट केस, और हमारे पास में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होंगी, तो हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट वी नो कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई हमारे पास में एक नई इक्वेशन आती है जिसे हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का काम क्या होता है, जो हमें बताती है कि कैसे आपका ईएमएफ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंज होने से चेंज होता है। नर्स्ट इक्वेशन इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन में NF, मेनली यहां पर आता है इसके वजह से प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इस वाले केस को ही। इस वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास में जिंक से Zn+2 बन रहा है, ठीक है, और कॉपर से कॉपर है, तो यहां पर कंसंट्रेशन आएगी आपके पास में Zn+2 की, और वी कैन से दैट जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन और कॉपर की कंसंट्रेशन आएगी, नीचे कंसंट्रेशन आएगी आपके पास में कॉपर +2 की और जिंक की, ये वाली। इसको रिएक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम में, है ना, तो ये आएगा। अब हमें पता है सॉलिड स्टेट में हम हमेशा कंसंट्रेशन 1 मान के चलते हैं, इसलिए इसको जो है हम ये वाले पोर्शन को हटा देंगे और हमारे पास में केवल यही पोर्शन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द नर्स्ट इक्वेशन, और वी कैन से दैट ऑक्सीडाइज्ड अपॉन में रिड्यूस्ड फॉर्म, इसको नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। और हमें देखने को मिलता है इस तरह से, इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा हाँ मैं बताती हूँ व्हाट इज आर। आर इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है। देन T इज द टेम्परेचर, N क्या होता है हमारे पास में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इस तरह से करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब हम एक टर्म और मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, ब्रीफली जल्दी से इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल। सेल लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास में कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, ठीक है। सेल का मतलब ये होता है इस तरह से, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट दिस कम्बरसम थिंग ऑलवेज। हम सेल को, यानी कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी रिप्रेजेंटिंग हियर, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ शॉर्ट, ओके। सो फॉर दिस सेल नोटेशन इज रिक्वायर्ड। सेल नोटेशन लिखते वक्त हमेशा कैथोड को राइट की तरफ, एनोड को लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, एंड देयर इज अ स्लैश जो इंडिकेट करता है दैट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेजेस। जैसे कि हमें पता है, और हमेशा मेटल्स हमेशा एंड में लिखे जाते हैं सेल के, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जिंक है, हमें पता है यहाँ पर जिंक आएगा, फिर ZnSO4 मेटल है इसलिए लास्ट में लिखा है, फिर इनके बीच में फेज डिफरेंस तो है, स्टेट डिफरेंस तो है, बट इनके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसलिए इनके बीच में एक स्लैश आएगा। देन फॉलोड बाय राइटिंग अ सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है ये जो इंटरनली कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एंड देन उसके बाद में आएगा कॉपर सल्फेट एंड देन कॉपर, क्योंकि हमें मेटल्स लास्ट में लिखने हैं। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द सॉल्ट ब्रिज आपके पास में। So friends, this is all about what I have given just an intro of that, and if I get a chance then I will definitely introduce this concept further so that you get to know about it. Thank you.